गतिः गुरुमेव भजे गुरुनैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो ब्रवीमि संस्कृतं वाचा ध्यायामि संस्कृतं हृदा कुर्वे सेवाञ्च कायेन वन्दे संस्कृतमातरं यो नरः संस्कृतव्योम्नि ख्यालयं रमते मुदा संस्कृतिं चैव संस्कारं विन्दते नात्र संशयः राम 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 Let us start the session. Srimad Bhagavad Gita Adhyaya Sar. Instructor of this course is Uma Sharma. Uma Sharma is a dynamic national award winning teacher and educator. She possesses 40 years plus uh, experience in both teaching and designing courses and curriculum framework for Samskrita Samskriti Samskara related content across the country. She has played key role at institutions like Center for Cultural Resource and Training, New Delhi, Bharatiya Shiksha Board, CBSE, and NCRT, contributing to curriculum related to art and culture, content development, and teacher training focused on integrated learning. She is currently working with NCRT as a CAG IKS team member. She is highly versatile, possessing exceptional teaching skill in a wide range of areas, including Sanskrit Stotra, Yoga Darshana, storytelling from Itihasa Purana. We have one more instructor as a co-teacher for this course, Sunaina Rao Chaudhary. Sunaina is a versatile educator who has worked with young adults and preschool students. She holds an MPhil degree in nutrition. Her passion for languages and culture has enabled her to work across continents and teach various cohorts. She has taught the Chinmaya Mission Balvihar curriculum in Sydney. Her chanting and reading journey with Sanskrit started through the Srimad Bhagavad Gita at Gurukulam in 2010. How to join the classes? First of all, go to our website www.sanskritfromhome.org. Log in with your credentials. At that time, I will show you now. See, once you go here, go to My Learning. Here, you can see that join now. If the classes are started by the teacher, then this notification will appear. By clicking this, you can join the webinar. And while asking any questions or do you have any doubts, please raise the hands while then the teacher will answer your any doubts, or you can use Q&A section. And while talking with the teacher, please unmute and talk. After your clarifications, please mute and let others to talk. And for the better experience, you can use headphones. To join the webinars, you can use PC, Android devices, iOS devices, any of them. And we have mobile application for Android as well as iPhone, iOS devices, which helps you to take webinars or to attempt the assessments or to submit the assignments, etc.
To download the applications, you can go through with this QR codes. If you need, I will wait for a minute. If you have any queries, please raise the queries through our mobile number or our mail ID, which is showing on the screen. For the better experience, please close any other tabs or applications which is running in the background back end of this webinar. So thank you. Please continue, ma'am. गुरुरेव गति गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरुः परमं शिशुरस्मि गुरोः मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय सार कार्यक्रम का परिचय होगा। अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग की बात होगी। 1 से 47 तक श्लोक हैं इसके। स्वागत, अभिनंदन, प्रणाम। ईश्वर की परम अनुकंपा है कि हम भगवद गीता के नाम से एकत्रित हुए हैं और मजे मजे में पीयर लर्निंग के साथ इस कार्यक्रम को चलाएंगे। सुनैना जी हमारे साथ रहेंगी सुंदर स्वर में आपको श्लोकों का वाचन करने के लिए। तो कार्यक्रम के परिचय की बात करें कि ये मद भगवद गीता अध्याय सार कार्यक्रम क्या है, क्या प्रयोजन है इसका और क्या विशिष्ट उद्देश्य है, अधिगम क्या होगा, हम इन 20 दिनों में से गुजर के क्या ले जाएंगे अपने साथ में। तो ये जो है गीता के मूल विशुद्ध सरलार्थ को हिंदी में समझने का एक प्रयास है व्योमा के द्वारा और हमें जो है माध्यम बनाया है मिलजुल के आपके साथ में अपने ज्ञान को पुष्ट करने के लिए। तो मूल कथा भाव से परिचय के साथ साथ जो है ये जो वेदों और उपनिषदों का सार ग्रंथ है ना, तो इसको समझने की कोशिश करेंगे। आज के संदर्भ में देखेंगे कि क्या है, विशेष उद्देश्य में आते हैं कि गीता के गूढ़ ज्ञान से साक्षात्कार करेंगे। आज क्या है इसकी सार्वभौमिक प्रासंगिकता क्या है, आज भी हमारे लिए जिस समय में ये गीता का ज्ञान अर्जुन को मिला होगा उसमें और आज में, तो इस बात से हम जानेंगे। जीवन जीने की कला और स्वस्थ आचार संहिता देने वाला ये ग्रंथ है और प्रवृत्ति निवृत्ति 2 वैदिक मार्ग बताए गए हैं कि भक्ति, कर्म, ज्ञान और योग, इनके संतुलित व्यवहार की समझ जो है गीता हमको देती है। धर्म की परिभाषा सिखाती है, कर्तव्य बोध, विवेक रक्षा, आध्यात्मिक प्रगति, ज्ञान विस्तार होगा। भाषा तो बढ़ेगी ही, जब हम एक भाषा में बात करते हैं तो वो भाषा ज्ञान तो पुष्ट होता ही है। तो इस तरीके से पूर्व योग्यता क्या है, क्या विषय वस्तु है इस कार्यक्रम की बात करें तो गीता क्या है, गीता का स्वरूप कैसा है, ग्रंथ महात्म्य क्या है, कितना विशाल ग्रंथ है ये, गीता का पाठ और फलश्रुति क्या है, क्या क्या मिलेगा, है ना, और गीता ज्ञान की पृष्ठभूमि क्या है, क्या हुआ था जब ये गीता का ज्ञान भगवान ने अर्जुन को दिया। तो गीता जो है ना एक कोई ही प्रसंग है। ये भगवत गीता क्या है कि एक ऐसा प्रसंग है कि जो जब भगवान ने ये ज्ञान दिया, महाभारत का युद्ध चल रहा था, तो उसके 10 दिन के बाद ये पता चला, अगर संजय धृतराष्ट्र जी को ये नहीं सुनाते तो ये वार्ता तो गुह्य रह जाती। तो इस पे भी हम बात करेंगे, बड़ी सुंदर कहानी है। तो चलते हैं। जीवन की चुनौतियां जो है ना उनको कैसे पार करें, संघर्षों को, किंग कर्तव्य, विमूढ़ता जो है,
यही गीता की प्रासंगिकता है कि कैसी भी स्थिति हो, गीता में हमें समाधान मिलता है। तो बोलचाल की जो हिंदी जानने वाला है वो इसका अधिकारी है, और जिसको भगवत गीता को जानने की मन में उत्कट अभिलाषा है कि है क्या गीता में, है ना, और सरल सुगम भाषा में जो गीता को समझना चाहते हैं वही इसके अधिकारी हैं। और प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में हमारे क्या है, अपने ग्रंथों को सनातन संस्कृति को जानने की जिनकी तमन्ना है उनके लिए ये ज्ञान है। और जिनको हमेशा प्रेरणा मिलती है अपने ग्रंथों से ना, तो भगवत गीता उनके लिए सुंदर ग्रंथ है। तो क्या परोसती है ये गीता हमको, क्या क्या मिलेगा? तो अगर सीधी भाषा में समझाएं तो जिसको खाना बहुत पसंद होता है ना, खाना क्या, ये तो हमारे प्राण आधार है। तो गीता को हम ऐसे जान सकते हैं कि ये भक्ति का भोजन देती है, कर्म का जल देती है, वेदांत का मिष्ठान है, चॉकलेट है वेदांत की, है ना, और पूरा पोषण देती है। हर सांस हमें संयम सिखाती है और हमें योगी बनाती है, योग युक्त करती है ये गीता। तो जिसे ऐसी तुष्टि और पुष्टि चाहिए ना, उसके लिए गीता एक प्राणाधार ग्रंथ है। जैसे भोजन पानी वायु के बिना हम तो, हमारा अस्तित्व ही नहीं है। तो ऐसी पुष्टि तुष्टि जिसको हर सांस में गीता का ज्ञान चाहिए, उनके लिए गीता है, प्राणाधार है। तो इस कार्यक्रम का फॉर्मेट क्या रहेगा, भगवत गीता का स्वरूप कैसा है, इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। भगवत गीता क्या है, गीता का स्वरूप क्या है, इस थोड़ी बात होती है कि गीता को भगवान का गीत कहते हैं। एक ऐसा उपदेश है कि जो वासुदेव भगवान कृष्ण की वाणी से निसृत है, सीधा भगवान ने बोला है, बताया है, जो वो ज्ञान है। और ये महर्षि वेद व्यास जी ने जो महाभारत की रचना करी, तो उसका एक अंश है। महाभारत के भीष्म पर्व के 23 से 40 तक के 18 अध्याय हैं, वही भगवत गीता के नाम से जाने जाते हैं। और मैं बताऊं कि गीता क्या होती है। गीता है आत्मज्ञान कराने वाले उपदेश को गीता कहते हैं। बहुत सारी गीताएं हैं, आप सर्च करिएगा कितनी गीताएं निकलेंगी। और कितनी गीताएं महाभारत में हैं, कितनी गीताएं श्रीमद् भागवत में है, तो आप देखिएगा। तो ये आत्मज्ञान कराने वाला, जो ज्ञान देने वाला जो ग्रंथ होता है ना, ऐसा उपदेश, ग्रंथ नहीं उपदेश, बिल्कुल सूक्ष्म छोटा कम विस्तार वाला जो ज्ञान है, वही गीता कहा जाता है। तो हम भगवत गीता की बात करें, जो भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को जो उपदेश दिया, वो श्रीमद् भगवत गीता है। तो इसका स्वरूप कैसा है? 18 अध्याय हैं और 700 श्लोकों का एक संवाद है, एक वार्तालाप है, प्रश्न और उत्तर है। देखिए, प्रश्न जो है हमारे देश की ज्ञान परंपरा का अटूट हिस्सा है। आप कोई सा ग्रंथ ले लीजिए, कोई सा ना, कुछ भी पढ़ना चाहेंगे ना, प्राचीन ग्रंथ लीजिए, संस्कृत की धरोहर लीजिए, उसमें किसी ने प्रश्न किया है और किसी आचार्य ने उत्तर दिया है। तो प्रश्न उत्तर जो है हमारी ज्ञान परंपरा है, और इसी का श्रीमद् भगवत गीता में भी सुंदर निर्वाह किया है। पूरे 18 अध्याय तक भगवान अर्जुन को एक टॉपिक लेते हैं, एक योग लेते हैं, कभी भक्ति लेंगे, कभी कर्म लेंगे, कभी संन्यास लेंगे, कभी जो ज्ञान लेंगे। तो लेकिन जब वो पूरे अध्याय में समझा के अगले अध्याय में फिर अर्जुन का प्रश्न खड़ा होगा, इतना अबोध, इतने इनोसेंट, इतने सुंदर प्रश्न है अर्जुन के, एक बालक की तरह से, एक जिज्ञासु बच्चे की तरह से वो प्रश्न करता है, और भगवान फिर से उसके प्रश्नों का उत्तर देने लग जाते हैं। और बिल्कुल 18 अध्याय के अंत में जाके अर्जुन ने कहा कि मैं युद्ध के लिए तैयार। तो ये इतना सुंदर प्रश्न उत्तर का संवाद है। जब इसमें से गुजरेंगे तो अर्जुन का हर प्रश्न ऐसे लगेगा कि ये हमारा प्रश्न है, हमें भी यही दुविधा है, अरे मैंने भी यही सोचा था, अर्जुन ने ये पूछा। तो बहुत सुंदर वार्ता है, हम इसमें से
मिलके गुजरते हैं। तो ये तो सबको ही पता है कि कुरुक्षेत्र का मैदान था, युद्ध का मैदान था, है ना। तो उस समय भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया। तो सर्वशास्त्रमय ग्रंथ है ये बहुत कम लोग जानते हैं कि श्लोकबद्ध ज्ञान है, सरल श्लोक है और मंत्रमयी है। गीता का हर श्लोक एक मंत्र है, जीवन का मंत्र है। गीता की गणना जो है ना, अगर प्रस्थान त्रयी की हम बात करते हैं तो उस प्रस्थान त्रयी में गीता का स्थान है। 3 ग्रंथ जो आते हैं उनमें गीता का स्थान है। तो प्रस्थान त्रयी के बाकी बाकी 2 शास्त्र कौन से हैं आप पता करिएगा। और अगर हम 108 उपनिषदों की बात करें तो उनका सार गीता है। इतना सुंदर ज्ञान है। तो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाला ग्रंथ जो आध्यात्मिक ग्रंथ है वो गीता है। और संसार की लगभग सारी भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। और इसकी रचना इतनी सुंदर और सरल है कि यदि आप इसके श्लोक को बिना कोई अर्थ जाने इसके श्लोक का वाचन करेंगे, पढ़ेंगे 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 तो आपको अर्थ अपने आप खुलता है। तो इतना सुंदर और सरल है, लेकिन आशय इतना गूढ़ है, अर्थ इतने गूढ़ हैं कि बहुत गंभीर हैं। जीवन भर उन श्लोकों का मनन करते जाएंगे तो हर बार उसमें से नया 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 ज्ञान खुलता जाएगा। तो ये है इस गीता ज्ञान की विशेषता। तो प्रयोजन महात्म्य हो गया। प्रयोजन क्या है? ये गीता जो है इसका प्रयोजन परम कल्याण है। श्रीमद शंकराचार्य जी ने जब इसका भाष्य किया तो सबसे पहले उन्होंने बताया है कि ये परम कल्याणकारी ग्रंथ है। कल्याण ही पारब्रह्म परमार्थ तत्व को अभिव्यक्त करता है। ये गीता ज्ञान मोक्ष के द्वार को अनावृत करने वाली एक कुंजी है और आत्मा परमात्मा के स्वरूप और संबंधों को स्पष्ट करता है। जीवन मृत्यु का महामंत्र है कि भगवान ने अर्जुन को बोला कि तू मर जा, कट जा, है ना, इस युद्ध में प्राण भी दे दे तो भी तेरा कल्याण है, और जीत जाए तो है ही, है ना। तो इतना सुंदर है ये हमारे लिए कर्मों की आचार संहिता है। जीवन शैली निर्मित करने के लिए भगवान का निर्देश है। इसमें ज्ञान, भक्ति, कर्म और योग का बहुत सुंदर समन्वय है। गीता का ज्ञान, अध्ययन, अवगाहन और अनुकरण सारा योग है, सब मिला के योग बनता है। तो संपूर्ण योग देती है गीता। तो सबसे ज्यादा गीता का महत्व है कि इसकी सार्वभौमिक प्रासंगिकता। गीता में वर्णित विषय जो है ना, देश काल की सीमाओं से आबद्ध नहीं है, सार्वभौमिक है सबके लिए। किसी भी देश में किसी भी वय स्थिति जो है, किसी भी अपने वर्ण धर्म आश्रम कहीं भी स्थापित होगा व्यक्ति, गृहस्थ में है या संन्यास में, बालक है या वृद्ध है, सबके लिए इसके अंदर जो है समाधान मिलते हैं। सबके मन में चल रही लड़ाई का प्रतिनिधित्व करता है ये गीता ग्रंथ, है ना। अर्जुन, देखिए भगवान कृष्ण भी हमारे मन में है और अर्जुन भी हमारे मन में है ना। तो प्रश्न भी आता है और जब हम गीता का अध्ययन करते हैं तो उत्तर भी हमें वहीं से मिलते हैं। ऐसे लगता है कि भगवान की वाणी ही हमारे भीतर से हमें मार्गदर्शन कर रही है। तो हमें ये समझने में मदद करता है कि हम कठिनाई और आत्म संदेह पर कैसे काबू पा सकते हैं, है ना। किंग कर्तव्य विमूढ़ता होए तो क्या करें, कैसे कैसे उससे पार उतरें। तो ये इतना सुंदर ज्ञान है। और हाँ जी, अगर हम श्रवण पठन पाठन की फलश्रुति की बात करें ना गीता, तो भगवान ने 18वें अध्याय के श्लोक 68 से लेकर 71 तक, 68 to 71, भगवान के स्वयं के शब्द में मैं आपको बताती हूँ। मेरे में पराभक्ति प्रेम करके जो इस परम गोपनीय संवाद गीता को मेरे भक्तों में कहेगा, यानी कि वाचन,
वह मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि आपको गीता का एक 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 मंत्र, एक श्लोक, एक एक सूत्र भी पता है, जरूर बताइए, बहुत आनंद होगा, है ना। उसके समान भगवान आगे कहते हैं, उसके समान मेरा अत्यंत प्रिय करने वाला मनुष्य में कोई भी नहीं है, और इस भूमंडल पर उसके समान मेरा दूसरा कोई प्रियतर होगा भी नहीं। जो मनुष्य हम दोनों के इस धर्ममय संवाद का अध्ययन करेगा, यानी जो पढ़ेगा, जो कहेगा, जो पढ़ेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। तो गीता का पठन पाठन जिसको कहते हैं कि ज्ञान यज्ञ है। और आगे कहते हैं कि तथा जो श्रद्धालु, श्रद्धावान, अनसूयु, अनसूयु मतलब दोष दृष्टि रहित व्यक्ति, है ना, जो पुरुष इसका श्रवण मात्र भी करेगा, यानी कि इसके सुनने का कितना महत्व है। सुनना कैसा? दोष निर्दोष, पूरी श्रद्धा के साथ अगर इसका श्रवण भी करेंगे तो वे भी सारे पापों से मुक्त होकर पुण्य कर्मियों के श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त करेगा। तो गीता सीधा मोक्ष तक पहुंचाने वाला ग्रंथ है ना। तो हम इसको कैसे लेते हैं, कैसे धारण करते हैं, इसके ज्ञान को कैसे गांठ बांध लेते हैं, है ना, तो ये हमारे ऊपर है। तो फलश्रुति वैसी होगी, जैसा श्रवण, जैसा पठन, जैसा पाठन, तो जैसा ज्ञान हम धारण करेंगे वैसा हमें मिलेगा। तो वैदिक धर्म जो है ना, दो बताए गए हैं। एक है प्रवृत्ति मार्ग, दूसरा है निवृत्ति मार्ग। दो वेदोक्त। प्रवृत्ति मतलब जो संसार की ओर ले जाता है, सांसारिक सुखों की ओर ले जाता है। निवृत्ति मतलब कि आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है, मुक्ति की ओर ले जाता है। तो गीता ज्ञान की खूबसूरती ये है कि ये हमें प्रवृत्ति में निवृत्ति सिखाती है। देखिए, भगवान कृष्ण गृहस्थ, अर्जुन गृहस्थ, है ना, तो और क्षत्रिय और युद्ध करने वाला योद्धा और विजय का आकांक्षी, जीवन भर उसने शस्त्राभ्यास किया, है ना। और जब युद्ध का समय आ गया तो कह रहा नहीं लड़ूंगा। तो ऐसे समय में, ऐसे संकट काल में भगवान ने ये ज्ञान दिया था। तो जो है इसका अर्थ जान लेंगे ना गीता का, तो सारे पुरुषार्थों की सिद्धि होती है। पुरुषार्थ क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो सीधा मोक्ष तक ले जाने वाला ग्रंथ है। तो प्रवृत्ति में निवृत्ति देने वाला ग्रंथ है। प्रश्न ये है कि क्या हम सांसारिक काम करते हुए निवृत्ति या मोक्ष, जीवन मुक्ति पा सकते हैं? यही इस गीता का चरम जो है ज्ञान की सीमा है, कि प्रवृत्ति में निवृत्ति सिखाता है। संकट काल में हमें संकट से उबारता है ये ज्ञान। तो बहुत ही सुंदर ज्ञान है। तो क्योंकि भगवान ने शोक मोह रूपी समुद्र में गोते लगाते हुए अर्जुन को दोनों ही प्रकार के वैदिक धर्मों का उपदेश दिया। उन्होंने प्रवृत्ति भी सिखाई, उन्होंने निवृत्ति भी सिखाई। तो बहुत ही सुंदर ज्ञान है। तो आगे चलते हैं कि गीता की पृष्ठभूमि क्या है। ये तो सबको मालूम है, सबको पता है, लेकिन गीता की अपार शक्ति का कारण क्या है? क्या है? क्योंकि गीता ज्ञान का उद्भव स्थल, मतलब गीता ज्ञान का जन्म जो हुआ ना, वो किसी तपोवन में, किसी आश्रम में, किसी गुफा या कंदरा में या किसी शैक्षणिक संस्थान में नहीं पढ़ाया गया। ये तो बिल्कुल जो है विकट विकट परिस्थिति, पूरे देश के लिए जो संकट काल होता है युद्ध समय, तो युद्ध युद्ध समय भी नहीं, युद्ध युद्ध शुरू हो गया जब युद्ध का बिगुल बज गया, जब सारे शंख बज गए, घोषणा हो गई, सब युद्ध के मैदान में खड़े हैं। तो ऐसे संकट काल में, जिसको कहते हैं ना कि ब्रेन एक्ट्स फास्टर इन इमरजेंसी, तो ये ऐसी इमरजेंसी में भगवान के मन से निकला ज्ञान है, बताया हुआ ज्ञान है कि मैं इसको क्या करूं, अरे इसके कान में ऐसा क्या बताऊं कि जल्दी से जल्दी ये, कितनी शर्म आएगी। इतना बड़ा योद्धा युद्ध में युद्ध से पलटने की बात कर रहा है, तो
सोचिए कि भगवान को कितनी टेंशन हुई होगी अर्जुन के इस व्यवहार से, है ना। तो यही इसकी शक्ति का कारण है कि ये संकट काल में और कम से कम शब्दों में, कम से कम समय में इसको जल्दी से ऐसा क्या समझा दूं कि अ, युद्ध का तुमुल नाद होने और पहला बाण चलने के बीच में अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो जाए। तो ये है इसकी शक्ति का कारण। और पृष्ठभूमि की बात करें तो जो है, अर्जुन ने देखा महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला है, भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी बने हैं, युद्ध की घोषणा हो गई है, शंखों भेरियों युद्ध के नगाड़ों से दिशाएं गुंजायमान थी, है ना। तो अर्जुन ने आग्रह किया तो भगवान उसके रथ को ले गए दोनों सेनाओं के बीच में, है ना। तो जब अर्जुन वहां पहुंचा, अरे किस किस के ऊपर बाण चलाने हैं, देखा तो विपक्ष में तो उसका पूरा परिवार खड़ा था। गुरुजन कुरुजन भीष्म पितामह, बंधु मित्र सखा संबंधी, सारे तो उसके अपने लोग थे। क्या इन्हीं के ऊपर मुझे बाण चलाना है? देखिए, क्या अर्जुन ने ही ऐसा किया कि वो ऐसे हो गया, या हम में से कोई भी होता तो ऐसे ही करता? सोचने की बात है कि हम ऐसे में हो तो हम क्या करते, है ना। तो अर्जुन का क्या ऐसा व्यवहार करना सहज था, ये हमारे आज सोचने का विषय है। तो ऐसे में डर गया, घबरा गया, निर्णय नहीं कर पा रहा है, और युद्ध में क्या अपनों के विरुद्ध अस्त्र उठाना होगा, हाँ शस्त्र चलाने होंगे। तो भगवान के चरणों में आ गया, जब शरणागति हुआ तो उचित मार्गदर्शन के लिए निवेदन किया, प्रार्थना की, गिड़गिड़ाया, तब भगवान ने गीता का ये उपदेश दिया। तो ये गीता का कथोपकथन जो संवाद है ना, जो वार्तालाप है, एक गुह्य प्रसंग है। इसकी एक कथा है कि कैसे ये हमारे सामने आया। तो हम इसके सेशन के एंड में इस पे बात करेंगे, और आप भी इसको जानिएगा कि कैसे। तो गुह्य प्रसंग कैसे है कि इसमें वक्ताओं के दो जोड़े हैं हमारे सामने। एक तो भगवान कृष्ण अर्जुन को तो कह रहे हैं ये बात, है ना। और दूसरा जोड़ा है संजय का। संजय जिसने वो सारी बात अपनी दिव्य दृष्टि से जान ली, और फिर बाद में आके संजय ने कौरव नरेश धृतराष्ट्र को बताई, है ना। तो ये बात जो सुनाई, तो ये दिव्य दृष्टि क्या थी, कैसे मिली थी, तो ये अंतः कथा है। इसके ऊपर आप सर्च करिएगा, ढूंढिएगा, आप बताएंगे, और हम भी देख के आते हैं, बताते हैं आपको। तो ऐसे में जो अर्जुन को उपदेश मिला ना, तो ये गीता कहलाई। ओके, चलिए अब हम गीता, भगवत गीता में प्रवेश करते हैं। ध्यान मंत्र बोलते हैं। सुनैना जी, मैं एक मंत्र पहला मैं बोलूंगी, नेक्स्ट आप बोलिएगा, और म्यूट उसमें सब लोग अपने अपने स्थान से बोलेंगे। कुछ ही दिनों में ये हमको 3 श्लोक हैं, याद हो जाएंगे, और इसका वाचन हम रोज करेंगे। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमस्ते कमलनाभाय, नमस्ते जलशायिने, नमस्ते केशवानंद वासुदेव नमोस्तुते। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ अनन्ताय नमः, अच्युताय नमः, गोविन्दाय नमः।
शांति शांति शांति। हाँ जी, अध्याय 1। ओम श्री परमात्मने नमः। अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग। कुल 47 श्लोक हैं इस अध्याय में, और पहला अध्याय जो है अर्जुन विषाद योग है इसका नाम। तो अर्जुन का विषाद है, ये जो है गीता के उपदेश के लिए अद्भुत संयोग प्रस्तुत करता है ये अध्याय, या यूं कहें कि मंच देता है, ऐसी भूमि प्रदान करता है जिसमें श्रोता और वक्ता दोनों ही बड़े भारी आपातकाल में हैं और जीवन की बड़ी भारी समस्या के समाधान के लिए प्रस्तुत होते हैं। ऐसा नहीं है कि अर्जुन दुविधा में है, उसने भगवान को तो और भी बड़ी दुविधा में डाल दिया कि वो क्या करें ऐसे में। उसके सारथी बन के आए हैं, उसके सूत्रधार बन के चल रहे हैं, उसकी बागडोर संभाली है। अर्जुन ने तो नारायणी सेना लेने से इनकार कर दिया कि मुझे तो आप ही चाहिए। अरे कितना भगवान को कैसी दुविधा हुई होगी कि मैं इसको क्या जल्दी से समझाऊं, है ना। तो श्रोता और वक्ता दोनों ही बड़े आपातकाल में हैं और बड़े भारी समस्या के समाधान के लिए प्रवृत्त होते हैं। और सारे गीता ज्ञान के लिए जो है पहले अध्याय में ही अर्जुन ने भगवान से अपनी सारी स्थिति कह दी कि बस स्थिति क्या कह दी कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, है ना। ऐसी स्थिति में पहुंच गया वो। तो अर्जुन का विषाद है। फिर भी इस के दो भाग हैं। पहले भाग में तो युद्ध का उत्साह और उमंग है, 1 से लेकर 27 श्लोक तक आधा अध्याय जो है ना बड़े युद्ध के आनंद में है। 2 प्रश्न तो हैं, अर्जुन का धृतराष्ट्र ने प्रश्न किया और संजय जवाब दे रहे हैं। तो यहाँ से तीसरे से फिर शुरू होता है कि क्या क्या हुआ क्या हुआ। तो पहले युद्ध का वर्णन, पांडवों और कौरवों की दोनों दलों के प्रधान वीरों का वर्णन आता है। प्रधान योद्धाओं के द्वारा शंखनाद होता है, किस किसने कौन कौन से शंख बजाए, सुंदर नाम। और अर्जुन के द्वारा फिर सैन्य दलों के निरीक्षण का वर्णन है ना। और उसके बाद होता है, उसके बाद शुरू होता है 28 से लेकर 47 तक जो है अर्जुन का शुरू होता है दुविधा और विषाद, किंग कर्तव्य विमूढ़ता, विचलित मनस्थिति, डावाडोल, बिल्कुल क्या करे क्या ना करे, है ना, मोहग्रस्त। अर्जुन के विषाद भरे वचन है। और फिर ये सिर्फ ये तो है कि ये मेरे बंधु सखा संबंधी ये करना ये करना, लेकिन युद्ध क्यों नहीं करूंगा इसके लिए भी तर्क देता है। देखो जब कुमार्ग पर जाता है ना बंदा, तो उसकी बुद्धि भी जो है विचलित हो जाती है, तो सही निर्णय नहीं देती है, सही विवेक नहीं देती है। कैसे कैसे तर्क दे रहा है कि मैं युद्ध क्यों नहीं करूंगा। बड़ी सुंदर बातें हैं, जानेंगे। और अर्जुन का शोक निमग्न होकर युद्ध के लिए मना कर देना, तो ये जो है कैसे, और आखिर में तो जाके रथ के पिछले भाग में बैठ जाता है ना। तो देखेंगे, बड़े सुंदर श्लोक हैं। सुनैना जी कुछ हाँ कहना मैम। चाह रहे हैं? हाँ, मैं कहना चाह रही थी कि देखिए अर्जुन जिस तरह से हो गए ना, तो एक तो हमें जैसे जैसे हम देखेंगे दिखेगा कि कैसे वो लॉयर बन गए, एकदम हर बात का तर्क कर रहे हैं भगवान के साथ। और हाँ दूसरा, अगर आप देखें तो हमारी जिंदगी ही एक सीरीज ऑफ डिसीजन मेकिंग होती है, तो उसमें हमारा हर वक्त इंटेलिजेंस और इमोशन कर्ण की ना लड़ाई चलती रहती है। तो भगवान ने इतनी सहजता से हर लेवल के लिए कि जैसे अगर मैं पहली सीढ़ी पे हूं तो मुझे क्या करना चाहिए, मैं दूसरी सीढ़ी पे हूं तो मुझे क्या करना चाहिए, इस तरह से अर्जुन को एक एक सीढ़ी चढ़ाते हुए पूरा जो है 18वें अध्याय तक ले गए हैं। बहुत जी। सुंदर, थैंक यू। हाँ जी। तो देखिए, तो पूरे पहले अर्जुन विषाद योग में पहला भाग धृतराष्ट्र संजय के प्रश्नोत्तर हैं, तो प्रश्न की जवाब में सारा चल रहा है। फिर युद्ध का उत्साह उमंग दिखाते हैं, किसने कौन से शंख बजाए, तो सब आएगा। फिर अर्जुन का विषाद शुरू होता है। और चलिए
शुरू करते हैं। पहले और दूसरे श्लोक मुझे लगता है कि अध्याय सार कार्यक्रम है, हमें अध्याय के सार और सरलार्थ की बात करनी है, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर कुछ श्लोकों का वाचन ना हुआ तो प्राणी नहीं बचेंगे, क्योंकि इतने सुंदर श्लोक हैं, इतने सुंदर मंत्रवत हैं कि हम बोले बिना रह ही नहीं सकते। तो ये जैसे कहते हैं ना कि भारतीय संस्कृति में क्या है कि बच्चे का जन्म होता है, जैसे उसको मुगली घुट्टी पिलाई जाती है ना, तो उसी तरह से एक गायत्री मंत्र और एक गीता के श्लोक तो ऐसे ही सहज ही कानों में पढ़ते ही जाते हैं। तो गीता के ज्ञान का हिंदी में, संस्कृत में और भारत की किसी भी भाषा के लोग हों, वो गीता को तो अपने घर में एक पूज्य ग्रंथ के रूप में रखते ही हैं। तो हम पहले और दूसरे श्लोक को देखते हैं कि क्या कह रहे हैं। हाँ जी, सुनैना जी बताइए, तो पहला श्लोक आप तो बोलिए। उमा मैम, मैं पढ़ देती हूँ, और बजाने का जो है वो हम लोग एंड में करें सबके साथ उच्चारण का, कि अभी अभी उसको बजा देती हूँ? नहीं, बताइए ठीक है, बोलिए, बोल दीजिए, आप पहले बोल दीजिए, मैं सेकंड बोलती हूँ। ठीक है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत संजय? हाँ जी। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यामुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। हाँ जी। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धृतराष्ट्र उवाच। जब 10 दिन का युद्ध हो गया, भगवान कृष्ण ने समझाया, अर्जुन युद्ध के लिए कूद पड़ा, और 10वें दिन जब भीष्म पितामह गिरा दिए गए, उस समय जब आके अचानक संजय ने धृतराष्ट्र जी को बताया कि ऐसा हो गया, तो उन्होंने कहा, अरे मुझे बताओ क्या क्या हुआ युद्ध के मैदान में। हाँ, तब वो उस दिन गीता का ज्ञान जो है हमारे सामने आया, जब धृतराष्ट्र जी ने पूछा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में, है ना, जो युद्ध के उत्सुक सारे मेरे और पांडु के जो पुत्र हैं, उन्होंने क्या किया, किम कुरवत, क्या हुआ, उन्होंने क्या क्या किया, पास्ट टेंस है। तो हे संजय बताओ। तब संजय ने बताया। तो ये थोड़ी सी बात आगे चलाते हैं कि कौरवों और पांडवों की सेनाएं, मैं अध्याय सार बोलती हूँ, उसके बाद कल ये चैप्टर पूरा होगा, तो इस समय मैं सार रूप में इसकी कथा बता देती हूँ। कल कुछ कुछ श्लोक लेके ऐसे चलेंगे। कौरवों और पांडवों की सेनाएं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर आमने सामने खड़ी हैं। दोनों पक्षों की सेनाओं में अनेक वीर महापराक्रमी धनुर्धर अत्यंत शक्तिशाली सदा संग्राम जयी योद्धा अनेक प्रकारों के हथियारों से सुसज्जित खड़े हैं। ये स्थिति है। कौरवों की सेना का सेनापतित्व कर रहे हैं वयोवृद्ध महाबाहु भीष्म पितामह, और पांडवों की सेना के सेनापति हैं महारथी भीमसेन। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते, क्या हुआ, सुंदर अर्जुन सुंदर घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले अपने रथ पर आसीन है। कैसे घोड़े हैं, सफेद घोड़े। हाँ, रथ की ध्वजा पर महावीर हनुमान जी अंकित हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी बने हैं। आंख बंद करके कल्पना कीजिए उस महायुद्ध की। मैं बोलती जा रही हूँ, आपके सामने पूरा चित्र उपस्थित होगा। आप कुरुक्षेत्र के उन बड़े विशाल बरगद के वृक्षों के नीचे पहुंच जाएंगे, जहां जाके हमने भी कल्पना करी कि यही वो धरती थी, यही वो स्थान था, यहीं पर भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया होगा। तो आप भी अपनी अपनी दिव्य दृष्टि से उसको देखने की कोशिश करिए। तो अर्जुन श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले अपने रथ पर आसीन हैं। रथ की ध्वजा पर महावीर हनुमान जी अंकित हैं।
भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी बने हैं, उत्साह उमंग है, दोनों पक्षों की सेनाओं के लिए युद्ध के लिए उद्यत देखकर उचित अवसर पर परम प्रतापी पितामह ने युद्ध प्रारंभ करने की घोषणा करते हुए उच्च स्वर में शंख बजाया। ओके, तो उत्तर में भगवान कृष्ण ने अपना पंचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया, सेनापति भीम ने पौंड्र नामक शंख बजाया। हाँ, तो उसके बाद युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव ने भी अपने अपने शंख बजाए, अनंत विजय, सुघोष और मणिपुष्पक ये शंख बजाए। तो शंखों के इस सिंहनाद के साथ युद्ध के अवसर पर बजाए जाने वाले सारे ढोल, ताशे, नगाड़े, बिगुल, तुरही, ढोल, मृदंग, सींग सब बज उठे एक साथ। तुमुल नाद आकाश और पृथ्वी को शब्दायमान करने लगा। सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलो भवत्। बहुत भारी शब्द हुआ। तो ऐसे में रथारूढ़ अर्जुन ने अपना गांडीव संभाला और प्रत्यंचा धनुष की डोरी खींच के बाण छोड़ने ही वाले थे कि उनकी दृष्टि धृतराष्ट्र के पुत्रों पर पड़ी। अर्जुन रुक गए और भगवान कृष्ण से कहते हैं, हे केशव, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले चलिए। आपको श्लोक सुनाई दे रहे होंगे, मैं बोल रही हूँ कि मैं देखना चाहता हूं कि मुझे किस किस योद्धा के साथ युद्ध करना है। तो अर्जुन के अनुरोध पर भगवान कृष्ण ने क्या किया, रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले गए। हाँ, और ले जाके खड़ा कर दिया रथ। गांडीव हाथ में लिए हुए युद्ध के लिए तत्पर अर्जुन ने कौरवों की सेना में क्या देखा, कुल वृद्ध भीष्म पितामह, अरे शंख तो उन्होंने ही बजाया था। हाँ, तो आचार्यगण, द्रोणाचार्य जी, कृपाचार्य जी, चाचा, ताऊ, भाई, पुत्र, मित्र, संबंधी, स्नेही, हितैषी, हाँ, तो इतने लोगों को खड़े देखा, उसका हृदय एकदम द्रवित हो गया, मन और शरीर में शिथिलता आने लगी। जो है ना, युद्ध का जो उत्साह, चाव जो था, वो सारा धीरे 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 शिथिल होने लगा। हाँ, अर्जुन ने भगवान से अत्यंत कातर स्वर में कहा, हे ऋषिकेश, मेरे सभी स्वजन युद्ध भूमि में प्राणों को त्यागने के लिए उद्यत हैं। युद्ध में इन्हें मारकर यदि मैंने राज्य और धन धान्य प्राप्त भी कर लिया तो उसका सुख किसके साथ भोगूंगा? क्यों युद्ध करूं? हे जनार्दन, इनको मार कर मैं पाप का भागी नहीं बनना चाहता। इनको मार कर अगर पृथ्वी पर तो क्या, तीनों लोकों का राज्य भी मुझे मिले ना तो स्वीकार नहीं है। मैं युद्ध नहीं करना चाहता। तो युद्ध ना करने के लिए और कारण बता रहे हैं, तर्क कर रहे हैं। कल हम श्लोक बाय श्लोक देखेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा सुन लीजिए कि अर्जुन ने भगवान से कहा, युद्ध में कुल का नाश होगा। अपने ही कुलवासियों पर तो बाण चलाने हैं ना, शत्रु तो कोई और नहीं है, अपने ही कुल के लोग हैं, है ना, कुल कुटुंब है पूरा। तो युद्ध में कुल का नाश होगा। कुल का नाश होने से स्त्रियां पथभ्रष्ट होकर दूषित और पतित होंगी, क्योंकि स्त्रियां कैसे दूषित होंगी, पति रण में मारे जाएंगे, परिवारों का क्या होगा, है ना, जिससे अवांछित संतान उत्पन्न होगी। वर्ण संकर कहा है इसको, है ना। तो अवांछित संतान उत्पन्न होगी तो पिंड, तर्पण, श्राद्ध आदि क्रियाएं लुप्त हो जाएंगी। लुप्त पिंडोदक क्रिया, तो ये लुप्त पिंडोदक क्रिया होगी तो इससे पितृगणों का पतन हो जाएगा। हमारे पितर जो है ना, पतित हो जाएंगे, पतन होगा, अच्छे लोगों को प्राप्त नहीं करेंगे, क्योंकि उनको तर्पण करने वाले नहीं रहेंगे वैसे जो है शुद्ध। तो इस तरह से सारे सामुदायिक और पारिवारिक कल्याण की क्रियाएं जो हैं, जो नष्ट हो जाने से सामाजिक व्यवस्था पलट जाएगी, सामाजिक व्यवस्था ही हमारी नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। ऐसा कह के ये 47वां श्लोक है कि अर्जुन जो है धनुष बाण को छोड़कर और रथ में पीछे की सीट पे जाके बैठ गए, पीछे रथ के आसन पर बैठ गए। तो ये है। तो यहाँ पर आता है युद्ध का पहला श्लोक। जब
ये सारी बात संजय ने सुनी और 10वें दिन जाके देखिए, तब भीष्म पितामह ने पहला शंख बजाया था, तो उसके बाद जो है युद्ध चलता रहा चलता रहा चलता रहा, लेकिन धृतराष्ट्र जी अपने यहाँ बैठे हैं, उनको युद्ध का समाचार अप्रिय नहीं मिल रहा है ना। तो जाके संजय ने जब बताया तो हमारी गीता शुरू होती है। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो एक एक से लेकर 11, सुनैना जी कितना समय है? ओके, उमा मैम 5-7 7 मिनट मिनट, है। हाँ 7 मिनट और हैं। तो हम ऐसा करते हैं, हम श्लोक बाय श्लोक कल करेंगे। हमारा अध्याय सार हुआ है, गीता की पृष्ठभूमि पर बात हो गई है, और मुझे जल्दी से वो प्रश्न दिखा देने हैं कि जो तुरंत मेरे मन में आ रहे हैं, मैंने सारे लिखे हैं, तो आप भी उनका समाधान ढूंढ के आएंगे। तो कल उन प्रश्नों की चर्चा करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और 5 मिनट के लिए आप इन लोगों से कनेक्ट करवाइएगा। 1-1 मिनट अगर 5 लोग भी बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये होता है, ये किन किन ने शंख बजाए ये भी आएगा, कौन कौन योद्धा हैं कल हम देखेंगे। शंख, भेरी, तुरही सारे चले। आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। कल हम श्लोकों का वाचन भी करेंगे। हाँ जी, ये आया है। ये दिव्य दृष्टि क्या थी, है ना? आज के संदर्भ में हम बात करें ना, तो ये दिव्य दृष्टि क्या थी? क्या महर्षि वेद व्यास प्रदत्त दिव्य दृष्टि वाली सामर्थ्य को आज के अति आधुनिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो क्या ये दूरदर्शन था, इंटरनेट था, या पृथ्वी का चक्कर लगाती हुई सैटेलाइट थी? क्या था ये? कैसा कैसा विकसित ज्ञान विज्ञान होगा हजारों साल पहले में? तो ये दिव्य दृष्टि किस चीज को नाम दिया है? या कोई उसकी साधना का फल मिला था, या आप क्या क्या समझते हैं? तो आज के संदर्भ में जरूर बताइएगा। और द्वापर युगांत की ये बात है, मतलब चतुर्युगी बोले तो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। कलयुग तो चल रहा है, और लेकिन द्वापर के युग का अंत होने वाला था, वो कैसा कैसा समय था इसकी बात करेंगे। और किस किसने कौन कौन से शंख बजाए ये भी ढूंढेंगे। और चतुरंगिणी सेना किसे कहा जाता है? चतुरंगिणी 4 प्रकार से युद्ध करने वाली सेना होती है। तो और कितनी कितनी बड़ी सेना थी दुर्योधन की, और कितनी बड़ी सेना थी अर्जुन की, है ना, पांडवों की? तो नारायणी सेना क्या थी? तो ये कुछ है। भगवान कृष्ण अर्जुन के बड़े सारे नाम आएंगे इस अध्याय में, जान के आइएगा। ओके, अंत कथा है, भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी क्यों बने थे, दुर्योधन के क्यों नहीं बन गए? तो कहानी है, शास्त्र प्रमाण है, हमारा महाभारत है, वहीं से मिलेगा सारा। नारायणी सेना क्या है? अर्जुन ने भगवान कृष्ण से नारायणी सेना को क्यों नहीं चुना था? हाँ, तो दिव्य दृष्टि संजय को कैसे मिली थी? गीता उपदेश की घटना कब घटित हुई, और कब संजय ने राजा धृतराष्ट्र को ये प्रसंग सुनाया था, ये भी आप जानिएगा। और अर्जुन के रथ की श्वेतई हयई युक्ते, है ना, 4 घोड़े दिख रहे हैं। मैं जहां भी देखती हूँ अर्जुन के रथ के 4 ही घोड़े दिखते हैं, लेकिन आप महाभारत में ढूंढेंगे तो आपको पता लगेगा कि एक्चुअली उसके पास कितने घोड़े थे और उनकी क्या विशेषता थी। तो कहाँ से मिला था ये रथ, कहाँ से मिला था, और रथ की क्या विशेषता थी, और महाभारत के बाद उसके रथ का क्या हुआ, और जो है कितने घोड़े थे, क्या विशेषता थी उन घोड़ों की, और अर्जुन के अस्त्र शस्त्र क्या है, कि धनुष बाण तरकश सारे विशेष थे, सब दिव्य थे, सब ऐसे थे कि जो किसी के पास वैसे नहीं है, क्योंकि भगवान भी तो उसके पास ऐसे है ना। ओके, तो अर्जुन के जो है उसको कैसे उपलब्ध हुए थे? और एक अर्जुन का एक नाम है सव्यसाची। सव्यसाची मतलब बाण चलाने से संबंधित है इसका अर्थ। तो सव्यसाची क्यों कहा गया है, सव्यसाची का अर्थ क्या है? तो ये आप जान के आएंगे, बहुत सारे प्रश्न हैं। और
सबसे बड़ा प्रश्न है कि इसमें अर्जुन का विषाद है। तो अर्जुन पहले अध्याय में भारी विषाद को प्राप्त हुआ और मोहग्रस्त हो गया। फिर भी इस अध्याय को अर्जुन विषाद ना कहकर अर्जुन विषाद योग का नाम क्यों दिया? योग होता है आत्मा परमात्मा के संबंध का ज्ञान देने वाला, ईश्वर में स्थापित करने वाली विद्या, है ना। ईश्वर से जुड़ना योग है, ठीक है। तो अर्जुन विषाद योग का नाम क्यों दिया? हाँ, तो ये आपको जानना है। हाँ जी, भारत के मानचित्र पर वो स्थान ढूंढे, बिल्कुल आज तो गूगल इमेजेस है ना, कुरुक्षेत्र की वो जगह ढूंढ लीजिए ज्योति सर, जहां पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। आज वो स्थान कैसा दिखता है? सुनैना जी बताइए, तो हम कब गए थे? जी उमा मैम, ये तो हम लोग काफी दिन हो गए गए हुए हमको। हमने ये गीता का जो प्रोजेक्ट है अब शुरू करने से पहले ये ठान लिया था कि जाके उस स्थान पर जरूर बैठेंगे, जरूर कुछ महसूस करेंगे और तभी फिर हम ये शुरू करेंगे। हाँ, तो और ये गीता जयंती के आसपास की बात है। पहला दिन जी, था जब गीता उत्सव वहां शुरू हुआ था, 14, दिसंबर मेरे ख्याल से 14 दिसंबर था या 29 दिसंबर, आई थिंक दिसंबर एंड था, दिसंबर। पहला दिन लास्ट शायद, था। हाँ, मतलब हाँ दिसंबर जी, में ही था। एग्जैक्ट डेट याद नहीं है जी। तो आप देखिए वहां पर आज ज्योति सर उस स्थान को कहते हैं, बहुत बड़े भारी 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 बरगद के पेड़ हैं। और उस स्थान पर जो जाके जो दिव्यता होगी, तो ऐसे लगता है कि हम अर्जुन है और सारा ज्ञान हमारे ऊपर उंडेला जा रहा है। दैट इज द फील ऑफ दैट प्लेस। बी देयर एनी टाइम। और लेकिन देख जरूर लीजिए। हाँ जी, तो खोजबीन भी करनी है। 4 5 6 श्लोक में पांडव सेना की जिन महारथियों के नाम लिए गए हैं ना, वो कहाँ कहाँ के राजा थे। कल हम नाम लेंगे, पढ़ेंगे, तो आप देखिएगा कहाँ कहाँ के राजा थे। आज भारत में वो स्थान कहाँ कहाँ पर है। एक महाबलीपुरम में, मामल्लपुरम में एक स्थान है जहाँ ये पंचरथास, रॉक कट आर्किटेक्चर है, टॉप टू बॉटम, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है। चट्टान को काट के ऊपर से नीचे की तरफ जो है काट के ये पंचरथ बनाए गए हैं। और ये पांडवों के रथ कहते हैं। और किस किस का क्या रथ है तो आप ढूंढेगा। बहुत सुंदर है। कहाँ कुरुक्षेत्र हरियाणा उत्तर भारत, और कहाँ मामल्लपुरम। देखिए हमारी जड़ें कितनी गहरी हैं भारतीय संस्कृति की। तो देखिएगा। ओके, हाँ जी, सुनैना जी आपकी बारी। जी, अब आपको आमंत्रित किया जाता है कि किसी के पास कोई भी जैसे जिज्ञासा का प्रश्न है तो प्लीज पूछिए। कुछ भी आज कहना चाहते हैं, हाँ, कुछ भी बताना चाहते कहना हैं, भी चाहते एक्सप्रेस हैं कर। तो किसी ने कहा है कि गीता जयंती 11 दिसंबर को थी। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। तो 14 को शायद वहां एक महोत्सव शुरू हुआ था। और 29, आई रिमेम्बर 29, 20। हाँ, तो फिर उमा मैम और मैं एंड ऑफ द मंथ तक गए थे जी। किसी ने, विवेक जी ने पूछा है कि विच वर्जन ऑफ द गीता वुड वी फॉलो इन दिस कोर्स। हम एक एक श्लोक का पठन और वाचन करके उसका हिंदी नहीं कर रहे हैं। अध्याय सार कार्यक्रम है। गीता के सरल अर्थ को मुझे बताना है, पढ़ना है। तो गीता के अर्थ की बात करेंगे, कहीं कहीं पर हम श्लोक भी ले लेंगे। तो आप अगर कोई सी गीता ले लीजिए, क्योंकि श्लोकों के नंबर तो आएंगे कि अब हम 10 से 15 श्लोक की बात कर रहे हैं। तो आप कोई सी गीता ले लीजिए, लेकिन गीता प्रेस गोरखपुर का वर्जन लेंगे तो उसमें आपको संस्कृत बहुत शुद्ध मिलेगी। और अर्थ तो हम बात करेंगे। अर्थ को थोड़ा सा सरल बनाने के लिए जो मेरा प्रयास हुआ है, हम बात वही करेंगे कि बोध गम्यता आए, सरल हिंदी में तत्व की बात कर सकें। तो ऐसा ये कोर्स है। समझ लीजिए कि मैं कोई ज्ञाता ज्ञानी नहीं हूँ, मैं तो आपके जैसी जिज्ञासु हूँ। मैं और सुनैना जी हम लोग मिलके गीता पढ़ते रहते हैं। तो बस
जैसा हमें समझ में आया, समझ लीजिए वी आर द बिगिनर्स और ABC हम गीता की जान रहे हैं, ऐसी ही बात होगी। तो आप कोई सा वर्जन लीजिए, संस्कृत के श्लोक रखिए अपने सामने, सूत्र, अर्थ तो उसके हम बात ही करेंगे सरल अर्थ। और उमा मैम मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगी कि सरल अर्थ तो हम लोग बताएंगे ही, उमा मैम आपको पूरे उस जर्नी के थ्रू ले जाएंगी, लेकिन अगर आप डिफरेंट वर्जन्स ऑफ गीता लेके बैठे होंगे तो आप उसमें बहुत कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अलग अलग तरह से अलग अलग समझाई हुई चीजें होती हैं, तो हर एक जना उस पे एक एक मतलब जोड़ता ही है। ठीक है उमा मैम। अच्छा, एक प्रश्न और आया किसी का, 1 मिनट में देखूं। आप हाथ खड़े करके बोल भी सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगी। रुचिका जी पूछ रहे हैं कि मैम इज देयर एनी कनेक्शन बिटवीन कुरुक्षेत्र एंड महाबलीपुरम? मैं सोचती हूँ कि ये पूरा ये विश्व के लिए ये ज्ञान है। पूरा विश्व यदि एक शरीर है तो सोच लीजिए हम कहाँ कहाँ पर हैं, अपने आप को जहाँ हैं वहीं ईश्वर से कनेक्ट करते हैं। तो कनेक्शन महाबलीपुर हमारे प्राण है, ये ग्रंथ हमारे ऐसे रचे बसे हुए हैं कि अगर भगवान राम का नाम ले तो कहाँ है कि हमारे देश में क्या संसार में भी तुमको राममय दिखाई देगा। ऐसे भगवत गीता के ज्ञान की बात करें तो यूनिवर्सल जो है ये ज्ञान है। और महाबलीपुरम में आप अगर गीता सॉरी रामायण और महाभारत जो है ना हमारे इतिहास कहे जाते हैं, तो आप इतिहास को जितना भी खोदते जाएं आपको और गहरा और विस्तार आपको पता चलते जाएगा। तो ये हम हमारे साधकों के ऊपर है कि हम अपने देश में या संसार में अपनी जड़ों को कहाँ तक ढूंढ पाते हैं, कनेक्शंस। उमा मैम इति जी दोबारा पूछ रही हैं विच गीता डू यू रेकमेंड फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग? तो यहाँ पे मैं यही कहना चाहूंगी इति जी कि गीता ना और मैं ये खास तौर से बता सकती हूँ आपको क्योंकि मेरी जर्नी इस में बहुत लेट शुरू हुई, उमा जी के साथ ही शुरू हुई। तो शुरू में जो है कोई भी गीता उठा लो कुछ भी नहीं समझ में आता था, तो बस खाली उच्चारण करना सीखा उमा जी के साथ मैंने। और जैसे मैम ने कहा ना कि उच्चारण करते करते भी कुछ कुछ समझ में आने लगता है। तो आप कोई भी गीता उठा लीजिए जिसमें बस 2 लाइन का एक्सप्लेनेशन भी हो, उसी के माध्यम से आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मैं नेक्स्ट स्टेप पे कब जाऊं और नेक्स्ट स्टेप पे कब जाऊं। ऐसे तो एक एक श्लोक का की व्याख्या 1-1 घंटे की है, तो वो आप जिस स्टेज पे हैं आप खुद ही डिसाइड करिए और सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट उठा के शुरू करिए। हमने जो भी गीता लेनी है ना उसमें सरलार्थ देखना है हमने, क्योंकि व्याख्या भाष्य हर एक का अलग हो जाता है। तो कोशिश करेंगे कि हम शुद्ध ज्ञान को मैं भी कम से कम शब्दों में बोलूं, ताकि उसकी बात जो गीता का मूल मूल सार मूल तत्व जो है ना आपको सीधे आपके पास पहुंचे। और जो हम व्याख्या वो बात रखेंगे वो श्लोकों से अलग रह के प्रश्न काल में उन शब्दों जो टेक्निकल जो भी शब्द आएंगे उनको भी हम अलग रख के उनकी व्याख्या करेंगे, उनके मूल अर्थ पे हम चर्चा करेंगे। तो कोई सी भी गीता लीजिए, आपको हिंदी या इंग्लिश कोई भी समझ में आती है उसका अर्थ लीजिए, लेकिन श्लोकों को मूल लीजिए संस्कृत के। तो जब हम ये कहेंगे कि 4 से 8 तक प्रश्न है तो कभी कभी हम श्लोक दिखा देंगे, कभी उसका अर्थ बता देंगे, है ना। लेकिन उसका उसकी व्याख्या कोई टर्म जो होंगी उनको हम आखिर में अलग रख के चर्चा करेंगे। चर्चा जिज्ञासा समाधान हमने सेक्शन ही अलग रखा है जो आपके साथ चर्चा होगी, और बीच के भाग में हम विशुद्ध मूल तत्व को सरल हिंदी में सुनेंगे। जी ज्योत्सना जी, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। उन्होंने लिखा है लव लिसनिंग टू बोथ ऑफ यू, योर टीचिंग्स आर लाइक म्यूजिक टू माय इयर्स, वेलकम बैक। विनोद जी आप पूछ रहे हैं कि श्लोक तो सेम होते हैं हर गीता में? जी, श्लोक हर गीता में सेम होते हैं। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, दोबारा आपसे कल मुलाकात होगी। नमस्कार। ठीक है, आभार, प्रणाम, कल मिलते हैं। जय श्री कृष्ण।